آج میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کو مذاکرات کے حوالے سے کچھ حقائق بتا سکوں۔ آج 2 نومبر کا دن ہے اور یہ بڑا یادگار دن ہے۔ اس دن قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کارکنان سے ایک حلف لیا تھا۔ ہن میں ایک حلف نامہ پڑھن لگا، تسی سارے اودے تے پڑھنا ہے نال۔ اے مجمع واسطے سی بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ رب العزت کو سمیع و بصیر جان کر اور خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حلف پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستانی یہ وہ عظیم جماعت ہے جس نے پورے ملک میں پرامن لبیک یا اقصی مارچ کا اہتمام کیا اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ملکی سطح پر، ڈویژن سطح پر، ضلع اور تحصیل سطح پر لبیک یا اقصی مارچ کا اہتمام کیا، اور انہی مارچوں کا ہی وہ تسلسل تھا کہ جب نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دلوایا اور اس کا اعلان حکومت پاکستان سے کروایا۔ اور نیتن یاہو جو ہے وہ ایک دہشت گرد ہے اور جنگی جرائم کا مرتکب ہے، اور اسی بات کا غصہ تھا ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو، اور اسی غصے کو نکالنے کے لیے انہوں نے قادیانیوں کے کہنے پر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان سے وہ جو انتقام لیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، وہ لبیک کی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے جب تک ان کا بھی ایک کلائمیکس ہونا، پھر زوال آ جانا ہے، کلائمیکس ہونا، پھر زوال آ جانا ہے، کلائمیکس ہونا، پھر زوال آ جانا ہے۔ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، یہ بات ہم سے نہ سنیں بلکہ حضرت علامہ مولانا جلیل احمد شرک پوری صاحب جو کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کوئی ذمہ دار یا کارکن نہیں ہے، وہ کتنے درد کے ساتھ بیان کر رہے تھے کہ 1000 سے اوپر لوگوں کو قتل کیا گیا، پھر ان کی لاشوں کو ٹرکوں میں لوڈ کر کے اوپر کپڑا ڈال کے لے جایا گیا۔ آپ کو حلفن قرآنن لوگ کہیں گے جی 1000 سے زیادہ بندے شہید ہوئے ہیں، 1000 سے زیادہ شادی ہوئی ہیں۔ یہ ظلم اور بربریت مرید کے مقام پر تحریک لبیک یا رسول اللہ پر اتنا ظلم اور جبر کیا گیا، حالانکہ آپ نے ایسا کام اسرائیل کی غلیظ ترین حکومت میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ کام اگر کیا ہے تو پاکستان کی حکومت نے پاکستان کی گولیوں سے پاکستان کے بیٹوں کو شہید بھی کیا، اور قومی خزانے کا جو بے دریغ استعمال ہے وہ یہ ہے۔ اور یہ ظلم پوری دنیا نے میڈیا کے ذریعے دیکھا، اور اگر آپ یہ ظلم اور جبر ہٹائیں، دنیا سے خوف دور کریں، تو اس کی ویڈیوز آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور میں بہت حیران ہوا کہ جب علماء کی موجودگی میں قاتل اعلی پنجاب محترمہ جناب مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اگر 600 بندے مرے ہیں تو دکھاؤ لاشیں کہاں ہیں۔ محترمہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ آپ کو صرف پانی نظر نہیں آتا اور آپ یہ پوچھتی ہیں کہ شعیب بتاؤ پانی کہاں ہے، تو آپ کو تو 1000 سے اوپر لاشیں بھی نظر نہیں آ رہی، اور خون میں تڑپتے ہوئے وہ 1000 سے اوپر عاشقان رسول وہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ ویسے حد ہے آپ کے جھوٹ کی، اتنی ڈٹائی سے جھوٹ تو شاید نیتن یاہو بھی نہ بولتا ہو جتنی ڈٹائی کے ساتھ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اور پھر تمام پاکستانیوں کے دل سانیہ مرید کے سے دکھی ہیں، اور اسی پر ایک اور ظلم ہوا کہ لوگوں کے گھروں کو توڑا گیا، مساجد کو سیل کیا گیا، مدارس کو سیل کیا گیا، اور پھر ماں باپ کے سامنے بچوں کو باندھ کے پانی کے ڈرموں میں ڈبکیاں لگوائی گئی تاکہ ان کے والدین لا تعلقی کا اظہار کریں۔ اور جب یہ ظلم ہوا تو لوگوں کو بٹھا کے ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی۔ اور میں کارکنان سے کہوں گا جو تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان ہیں کہ جنہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے ان کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ جو لبیک یا رسول اللہ کہنے والا ہے وہ کبھی دل سے منحرف نہیں ہوتا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان کارکنان کی عظمت و شان کو جو ہر ظلم اور جبر سہ کر بھی جنہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا
बल्कि आज भी वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और खड़े हुए हैं और लातालकी नहीं कर रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर हमारी मदद फरमाएगा और इंशाअल्लाह एक दिन ये जुल्म की स्यारात खत्म होगी और इंशाअल्लाह वो सूरज तुलू होगा जो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान करते हुए तुलू होगा और हम देखेंगे कि दुनिया कहेगी देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। अब मैं आपको मुज़ाकरात के हवाले से बताता हूं कि मुज़ाकरात में क्या हुआ, कि मैं खुद भी मुज़ाकराती टीम में शामिल था। आप हैरान होंगे कि मुज़ाकरात तो हुए ही नहीं। आप अगर गौर से देखें और सुने जो सोशल मीडिया पे आया तो एक हुकूमती नुमाइंदा कह रहा है जी मुज़ाकरात हुए ही नहीं, मोहसिन नकवी कह रहा है जी आखिरी रात तक मुज़ाकरात हुए हैं। कि जो लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हुए, मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे। देखें मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि मुज़ाकरात वाली बात तो दुरुस्त नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, अलबत्ता राब्ते ज़रूर हुए हैं। तो ये हुकूमती नुमाइंदे बात कर रहे हैं, एक कह रहे हैं मुज़ाकरात हुए, एक कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं हुए। तो मुज़ाकरात के बारे में अगर किसी ने बात की भी है तो आप अगर गौर से सुनेंगे तो वो कहेगा कि आखिरी रात तक वो यही कह रहे थे कि ये अनऑफिशियल मुज़ाकरात होंगे। तो क्या आप इसको मुज़ाकरात कहेंगे? मुज़ाकरात तो वो होते हैं कि जो वो ऑफिशियल हों और बंदे बाइख्तियार हों। थोड़ी देर के लिए आप इसको मुज़ाकरात का नाम दे लें, कह लें कि ये मुज़ाकरात थे। रात के आखिरी पहर हमें बुलाया गया और आपको पता है आजकल मगरिब भी तकरीबन 5:45 हो जाती है, सर्दियों की रात है और रात हमें तकरीबन 1 बजे मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया। मुज़ाकराती टीम वहां पर पहुंची मुज़ाकरात के लिए, तो वहां जो जिम्मेदारान बैठे थे उनके साथ हमने गुफ्तगू शुरू की। जब गुफ्तगू शुरू की तो उन्होंने कहा बस गुफ्तगू और मुज़ाकरात यही है कि आप फौरी तौर पर ऐलान करें, इसको खत्म करें और जाएं। हमने कहा यार ऐसे तो नहीं होता, और आपने मार्च शुरू होने से पहले ही हमारी 2 लाशें गिरा दी। उन्होंने कहा जी हम और कोई बात नहीं करेंगे, आप इसको खत्म करें, वाइंड अप करें, इसका ऐलान करें और जाएं। हमने कहा चलो ठीक है, हम मामलात को उलझाना नहीं चाहते थे। हमने कहा ठीक है बात तो करें हमारे साथ, आपने हमारे इतने बंदे शहीद कर दिए, हमारा जुर्म क्या था? हम तो सिर्फ इज़ारे यकजहती के लिए निकले थे, हमने कोई लड़ाई झगड़े वाली बात की है, कोई ऐसा मामला तो हमने किया नहीं है। जब हमने उनकी सूरत हाल देखी कि ये तो किसी बात पे नहीं आ रहे, तो हमने कोशिश की कि शायद हम इनको बात समझाने में कामयाब हो जाएं। हमने उनसे कहा कि भाई हमारा अमेरिकन एम्बेसी कोई जाना जरूरी नहीं है, ये हम पे फर्ज वाजिब भी नहीं है। अगर जैसे आप कह रहे हो मुल्क के हालात खराब है तो हम यहीं पर इसको वाइंड अप कर देते हैं, इसमें क्या हर्ज है? करीब थानों में हमारे बंदे हैं, उनको आप छोड़ दें। हम फातिहा शरीफ पढ़ेंगे शुहदा के लिए और गजा के शुहदा के लिए और फातिहा शरीफ पढ़ के हम लोग चले जाएंगे। तो मैं अल्फन कहता हूं कि वो जो मुज़ाकरात के लिए बैठे थे उन्हीं में से एक बंदे ने कहा कि जी इसका तो हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। अब आप अंदाजा करें कि जो मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं उनके पास इतना भी इख्तियार नहीं है, तो आप इसको मुज़ाकरात कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? फिर हमने कहा कि हमें आधे घंटे की मोहलत दें ताकि हम अपने अमीर मोहतरम से बात करके वापस आ जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग जल्दी जाएं। हमने गाड़ी निकाली और तेजी से चलते गए। जो बात होगी वो हम सच करेंगे कि जब हम पुलिस के नाके पर पहुंचे तो उन्होंने हमें रोक लिया। फिर हमने मुज़ाकराती कमेटी से राब्ता किया जिसमें होम सेक्रेटरी भी थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे और भी साथी थे। हमने उनसे राब्ता किया तो फिर उन्होंने फोन पे किसी बंदे को बताया तो फिर उन्होंने हमें जाने दिया। अभी जहां हमारा मार्च हो रहा था हम उससे तकरीबन कोई 4 किलोमीटर दूर थे और रास्ते में हमने देखा कि हर तरफ फोर्सेज ही फोर्सेज हैं। ऐसे महसूस हो रहा था कि ये पूरे मुल्क पर चढ़ाई करने के वाले हैं। ये तो एक तरफ है, आगे जो फोर्स है वो अलहदा है, जो साइडों पे फोर्स थी वो अलहदा थी। हमने उनकी हाई मशीनरीज देखी, उनके तेवर देखे, तो हमने अमीर मोहतरम को फोन किया और उनको बताया कि इनके अज़ाइम बहुत खतरनाक हैं और ये किसी सूरत नहीं रुकेंगे और हजारों लोगों को शहीद कर देंगे। तो अमीर मोहतरम ने फौरन हमें कहा कि आप लोगों को इख्तियार है,
आप जो फैसला करेंगे वो मिन्नो अन कबूल किया जाएगा। और भाई मैं आपसे कहता हूं कि जो हमारी मुज़ाकराती कमेटी कहेगी हम बिल्कुल मानेंगे, लेकिन ये गोली, ये शेलिंग, ये बंद करो। तो फिर हमने उन्हें कहा कि आप वहां पर भी ऐलान कर दें कि मुज़ाकराती कमेटी को हमने मुकम्मल इख्तियार दे दिया है, वो बाइख्तियार हैं। तो वहां पर ऐलान अमीर मोहतरम ने भी फरमाया और हजरत अल्लामा मौलाना फारूकुल हसन साहब जो कि रुकने शुरा हैं, उन्होंने भी ऐलान किया, जिस ऐलान को पूरी दुनिया ने सुना। हमने फिर मुज़ाकराती कमेटी से राब्ता किया कि अब आप सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए फोर्सेस को पीछे कर दें, हम आपके पास आते हैं, हमारे पास इख्तियार है, हम ये खत्म करने का ऐलान कर देते हैं। इतने में शेलिंग शुरू हो गई और बहुत खतरनाक तरीके से उन्होंने शेलिंग शुरू की। तो हमने फोन करके कहा कि आप शेलिंग बंद करवाएं, हम आपके पास आकर बैठकर यहां से ऐलान कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने पहले तो इनकार किया कि कोई शेलिंग नहीं हो रही, फिर इतनी देर में फायरिंग भी शुरू हो गई और ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा था। फायरिंग हमारे सामने हो रही थी, शेलिंग हमारे सामने हो रही थी, वहां धुएं के बादल उठ रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि अब आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा कि सही है, हम आपके साथ बैठे बगैर ही स्टेज पर जाकर खत्म कर देते हैं। हमने कहा कि खुदारा ये जुल्म रुकवाएं। तो वो कहने लगे कि कुछ नहीं हो रहा। फिर शहादतों पर शहादतें हो गई और उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं मानी। और फिर पूरी दुनिया ने ये मंजर देखा कि किस तरह सफाकाना और जालमाना तरीके से उन्होंने लाशें गिरा दी। जो हमारे लोग शहीद हुए वो यकीनन राह फलस्तीन के शुहदा हैं और ये शुहदाए खत्म नबूवत हैं, क्योंकि कादियानी ये चाहते थे कि तहरीक लब्बैक वालों की आवाज को बंद कर दिया जाए। मुज़ाकरात के दौरान भी मुज़ाकराती टीम के एक बंदे ने कहा कि कादियानियों की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो आप हैं। हमें नहीं पता था कि कुछ ऐसे अफराद हैं, कुछ ऐसे कादियानी पीछे हैं जो पुश कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत हमारे ऊपर ये जुल्म के पहाड़ ढा रही है। बहरहाल ट्रंप को, नेतन्याहू को खुश करने के लिए और कादियानियों को खुश करने के लिए ये सब कुछ किया गया। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान का कत्लेआम किया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम कारकुनान को महफूज रखे और अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। हम तो अहले फलस्तीन के लिए अखलास के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते हुए निकले थे और मैं मुसलमानों को ये कहूंगा कि कोई काफिर तो ये नहीं कहेगा कि मुसलमानों उठो, शर्म करो, मैदान अमल में आओ और आके दुनिया को बताओ कि ट्रंप ने पहले भी एक मुआहदा करवाया था और फिर उस मुआहदे से मुकर गए। अब दोबारा ये जो मुआहदा हुआ है आप इतना एहतजाज करते, मैदान अमल में आते ताकि दोबारा इस मुआहदे से वो फिर ना जाते। लेकिन आज देख लें, आज भी वो मुआहदे से फिर गए। उन्होंने मुआहदे से जो है मुआहदे की खिलाफवर्जी कर दी। और मैं ये पूरी पाकिस्तानी कौम से कहूंगा कि वो मरते दम तक इस खून लीग से ये सवाल करती रहे कि जो गजा के साथ इज़हारे यकजहती के लिए निकले थे उनका खून तुमने क्यों बहाया, तुमने गोली क्यों चलाई? आखिर क्या जुर्म था उन लोगों का कि जिनके पास कोई असला नहीं, कोई कुछ नहीं है, लेकिन तुम उन पर सीधी गोलियां बरसा रहे हो। ये फकत ट्रंप और नेतन्याहू की खुशनुदी के लिए किया गया है। मुझे बताए गोली क्यों चलाई। अब भी अगर तुम में शर्म है और अपनी गलती का एहसास हो गया है तो शुहदा हमारे हवाले कर दो और ऐलान करो कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। और हजारों मुसलमानों का कातल ट्रंप और नेतन्याहू की मजम्मत में असम्बली में करारदाद पेश करो, क्योंकि दूसरी बार ट्रंप और नेतन्याहू ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी हैं और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के कारकुनान से ये कहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से कामिल उम्मीद रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज वक्त जरूर बदलेगा और जब ये वक्त का पहिया घूमेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज यही जालिम शिकंजे में आएंगे। और आखिर में मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे शुहदा को याद रखा, इसाले सवाब किया,
बिलखसूस मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मुफ्ती आजम पाकिस्तान उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब और उनकी पूरी टीम और तमाम तंजीमात अहले सुन्नत बिलखसूस उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मदर सईद काजमी साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना कारी जवार बहादुर साहिब, सेनेटर हाफिज मोहम्मद मुश्ताक साहिब, तमाम साफी बरादरान, तमाम वकला और उलमाए अहले सुन्नत और अवाम अहले सुन्नत का शुक्रिया अदा करता हूं। वजीर आला केपी के सुहेल अफरीदी साहिब, जिन्होंने असम्बली फ्लोर पर शुहदा को याद रखा और उन्हें इसाले सवाब किया। इसी तरह जिस किसी ने भी हम मजलूमों के हक में आवाज उठाई और कातिल नवाज हुकूमत की मजम्मत की, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कातिल हुकूमत के खिलाफ शुहदाए खत्म नबुव्वत और शुहदाए फलस्तीन के लिए एक ताकतवर आवाज बनकर उभरेंगे। कातिल हुकूमत से हिसाब लिया जा सके कि गोली क्यों चलाई, और मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान से कहूंगा कि अपने आप को महफूज रखें और इस बात का पुख्ता यकीन रखें कि जिन मालकों का हम काम करते हैं वो हमें बेआसरा नहीं छोड़ेंगे। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान गया।